topic is important, that is important. Atom, what is molecule, what is atomic mass, what is molecular mass. देखिए, this is important. What is atom? We have a periodic table. Yes, in chemistry we have a periodic table, and here we exactly we do not know, but exactly we have 114 elements. At present we have 114 elements in periodic table. These are called elements. Now what is atom? Atom is the smallest particle of an element that may or may not have an independent existence. एटम, व्हाट इज एटम? इस एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता, विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव फ्यू एलिमेंट्स लाइक आयरन. आयरन इज Fe. Then we have sodium. Many more elements we have like gold, silver. We write it as such and they exist as such also. Iron exists as Fe, gold exists as Au, silver exists as Ag. So these are independent elements. These are independent elements. It means their smallest particles that are called atoms, they are also independent. But on the other side we have oxygen. O does not exist, O2 exists. Then we have hydrogen. H does not exist alone, it exists as H2. Then we have, find out some more. Yes, you can. Okay, this is a question mark. You can find out few more elements which may not have any independent existence. So atom smallest particle इन सब का है जो अकेला रह भी सकता है और अकेला नहीं भी रह सकता. Done. Next we have molecule. Again the same definition. The smallest particle of, but now it is not of element. It is smallest particle of a substance, because in substance we have compound as well as element. So या तो compound हो सकता है या वो element हो सकता है. The smallest particle of a compound or a substance that have independent existence. That have independent existence. Now what is this? What is molecule? Smallest particle है किसी भी substance का. वो compound भी हो सकता है, वो element भी हो सकता है, लेकिन वो हमेशा क्या होगा? Independently exist करेगा. Always independently. Example very easy. अच्छा, molecule को कैसे exemplify कैसे करेंगे हम? इनको हम divide कर लेते हैं. Molecules are of two types. One is homoatomic. These are called homoatomic. Second is heteroatomic. We have two type of molecules. One is homoatomic, second is heteroatomic. Homo means same. We have already done this. Homo means same. Hetero means different. So here same atoms combine to form molecule. Same atoms combine to form molecule. Here different atoms combine to form molecule. Example, same atoms, same elements. Example we have done already. Oxygen, O2, same atoms, OO, H2, HH, Cl2, your homework, Cl2, chlorine, Cl2,
ClCl. So this is homoatomic. Nitrogen N2. Okay, so these are called homoatomic molecules, but they are molecules. Why they are molecules? Because nitrogen is combined with nitrogen. Nitrogen is combined with nitrogen means both are same elements, both have same atoms. So this is called a molecule and a homoatomic molecule, and they have independent existence. Independent existence. Done? Now here comes heteroatomic. Hetero means different. मीथेन CH4 याद कर लीजिए साथ में व्हाट इज मीथेन, क्योंकि आगे चैप्टर स्टार्ट होंगे फिर आपको इजी रहेगा. मीथेन. ग्लूकोज C6H12O6. नमक NaCl. So these are molecules. These are also molecules, but they are different. Heteroatomic. They have 1 carbon, 4 hydrogen. 6 carbon, 12 hydrogen, 6 oxygen. So these are called heteroatomic molecules. They also have independent existence. Done? Okay. Next topic is important. Third topic. 1, 2. Third topic is atomic mass. What is atomic mass? अच्छा, molecular mass से पहले atomic mass को ही अच्छी तरह से समझना पड़ता है हमें. Can I rub it? Okay. Erase कर देता हूँ इसको. Space मिल जाएगी हमें. ठीक है. सो व्हाट इज एटॉमिक मास? स्टार्टिंग में क्या था, जब 19th सेंचुरी स्टार्ट हुई तब हमने जो जितने भी हमारे एलिमेंट्स थे, पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स थे, उनको हमने मास असाइन करना था. उनका कितना मास हो सकता है वो असाइन करना था. टू असाइन देम मास क्या एज्यूम किया गया, एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लिया गया. जैसे हम करते हैं +2 क्लास में या +1 क्लास में हम केमिस्ट्री करते हैं. हमारे पास केमिस्ट्री की बहुत सी बुक्स है. कोई पब्लिशर लेकर आ रहा है, कोई मेरे जैसा कोई पब्लिशर आज नई बुक निकाल रहा है, लेकिन हमने बेस किसको माना है? हमने बेस माना NCERT को. ऐसे ही सेम यहां पे हमने एक एलिमेंट को बेस बना लिया. बेस एलिमेंट एज ए रेफरेंस, उसे बोल दिया जाता है स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड एज ए स्टैंडर्ड. एंड वो स्टैंडर्ड था पहले हाइड्रोजन. स्टार्टिंग में हाइड्रोजन था. आज तो हमारे पास बहुत सारी स्पेक्ट्रोमीट्री, स्पेक्ट्रोमास, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है, इसके साथ हम मास इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का इजीली कुछ हद तक फाइंड हो सकता है. एग्जैक्टली अभी भी नहीं फाइंड हो सकता, लेकिन पहले क्या होता था, हमने हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मान लिया. तो हाइड्रोजन के रिलेटेड बाकी एलिमेंट्स कितने हैवी थे, कितने ज्यादा हैवी होते थे, कितने भारी होते थे, उनको हमने उसी के अकॉर्डिंग क्या असाइन कर दिया, मास. डन. ये तो थी थ्योरी पुरानी. अब क्या हुआ, नाउ सिंस कार्बन इज प्रेजेंट इन एवरी सब्सटेंस. आज क्या हुआ, कार्बन सारे एलिमेंट्स, सारे ही मैटर में कार्बन एग्जिस्ट करता है. कार्बन कोयले में भी है, कार्बन पेट्रोल में भी है, कार्बन हमारे खाने में भी है, कार्बन हमारे पीने में भी है. सो कार्बन को क्या किया, अब हमने कार्बन को एज ए रेफरेंस मान लिया. नाउ कार्बन इज कंसिडर्ड एज अ रेफरेंस एलिमेंट. विच कार्बन? कार्बन के बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं, उनके बारे में बाद में पढ़ेंगे. कार्बन का जो आइसोटोप है 12, जिसका मास नंबर 12 है, उसको हमने एग्जैक्टली क्या मान लिया, आज स्टैंडर्ड मान लिया. ठीक है. अभी कार्बन 12 का स्टैंडर्ड कैसे माना? देखिए, कार्बन 12 को इन्होंने क्या मान लिया कि कार्बन 12 को हम आज से क्या लिखेंगे, इट इज असाइंड एज मास ऑफ 12 एटॉमिक मास यूनिट. दिस इज ए इंपॉर्टेंट टर्म, AMU. कार्बन 12 को क्या माना इन्होंने कि कार्बन 12 जहां पर भी लिखा होगा वहां पे इसको एज्यूम किया जाएगा कि ये 12 कार्बन का मास है. बट कौन से 12 एटॉमिक मास यूनिट का मास है. 12 एटॉमिक मास यूनिट मिलकर जितना मास बनाएंगे वो कार्बन 12 का मास हो जाएगा. अभी मैं एक एटॉमिक मास यूनिट फाइंड करना चाहता हूं ना. व्हाट इज इंपॉर्टेंट हियर, क्वेश्चन आ गया हमारे पास, डिफाइन 1 एटॉमिक मास
यूनिट। ये क्वेश्चन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन 1 एटॉमिक मास यूनिट और 1 AMU। नाउ व्हाट इज 1 AMU? बट 1 AMU इज द, इट इज डिफाइंड एज, देखिए 12 का, तो 12 को एटॉमिक मास यूनिट पूरे को बोल दिया हमने, इतना एक फाइंड करना है, तो 12 इस साइड आके क्या हो गया 1/12 हो जाएगा ना। अगर मैं 12 की जगह यहां पर 1 लिख दूं तो ये 12 इधर आके क्या हो जाएगा 1/12। सो व्हाट इज 1 AMU? 1 AMU is exactly equal to 1/12 of mass of an atom of carbon taken as carbon 12। डेफिनेशन थोड़ी सी कॉम्प्लिकेट हो सकती है, लेकिन अगर हम उसको अच्छी तरह समझ लें तो हमें समझ आ जाएगा लिखा क्या है। 1 AMU is equal to 1/12 किसका 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन। कार्बन के एक एटम का मास जितना भी होगा उसका 1/12 कर देंगे हम, तो हमारे पास 1 AMU आ जाएगा। अभी कार्बन के एक एटम का कितना मास है, देखिए अभी टॉपिक तो हमने नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा हम यहां पे लिख लेंगे। कार्बन के एक एटम का मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, सो कितना हो गया यहां पे, देखिए कार्बन में टोटल अगर देखें हम 12 ग्राम कार्बन में कितने एटम्स होते हैं, 12 ग्राम कार्बन में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो नंबर, बाद में करेंगे हम, ठीक है। सो पहले फिलहाल सिंपली यहां के लिए सीख लेते हैं, इतने एटम्स मिलकर इतना ग्राम कार्बन बना देंगे आराम से। मींस इतनी बॉल्स अगर हम मिक्स कर दें, इतनी बॉल्स मिक्स कर दें तो 12 ग्राम कार्बन हो जाएगा। इतने एटम्स का मास 12 ग्राम है, हमने यहां पे क्या फाइंड करना है, एक एटम का मास। 1 एटम का मास कितना होगा, यहां से ये क्वांटिटी इधर आ जाएगी 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। मींस इस एटम का मास, एक एटम का मास इतना होगा। इसको यहां पे लिख दें 12 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। सो अगर मैं यहां लिख दूं इसको, अगर मैं इसको यहां पर लिख दूं, अभी क्या होगा देखिए, सॉल्व कर लेते हैं। 12 कैंसर, मेरे पास क्या बचा 1/6.022 इंटू 10⁻23। अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं, सॉल्व कर लेते हैं हम इसको अभी। यस, अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये मेरे पास आ जाता है कुछ 0.166, इसके आगे बहुत सी फिगर्स है लेकिन हम नहीं लिखेंगे वो। 0.166 इंटू 10⁻23, अभी मैथ में किया हुआ हमने। 10⁻23 जब ऊपर जाएगा दैट इज 10⁻23 हो जाएगा, प्लस वाली टर्म ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, ठीक है। अभी क्या करना है हमने, पॉइंट को आगे शिफ्ट कर दीजिए। 1.66 इंटू पॉइंट आगे शिफ्ट हुआ, किस साइड शिफ्ट हुआ, राइट साइड शिफ्ट हुआ। जब भी पॉइंट डेसिमल जो है हमारे राइट साइड शिफ्ट होगा न्यूमेरिकल में, देन पावर को हम क्या बोल देंगे, पावर को सबट्रैक्ट किया जाएगा। एंड जब भी लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा पॉइंट, तब हम पावर को एडिशन में बदल देंगे, उतने ही पॉइंट ऐड कर देंगे उसमें। अभी मैंने सिर्फ एक डिजिट आगे राइट को शिफ्ट किया, इट मींस एक डिजिट यहां से माइनस होगा, माइनस माइनस प्लस, सो दैट इज 10⁻24 ग्राम। So 1 atomic mass unit is equal to this much mass, 1.66 into 10⁻24 ग्राम भी लिख सकते हैं, या सिंपली इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंपली अभी ऐसे लिख दो, ठीक है। सो दोबारा से देख लेते हैं। ये एटम था जिसकी एक एग्जिस्टेंस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, इंडिपेंडेंट, वो कर लिया हमने, ठीक है। मॉलिक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। मॉलिक्यूल में क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, वो कंपाउंड का भी हो सकता है, वो एलिमेंट का भी हो सकता है, लेकिन ऑलवेज इंडिपेंडेंट रहेगा जी, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है इसकी।
अभी इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने, एक होमोएटॉमिक होते हैं, एक हेटेरोटॉमिक होते हैं, जो हमने यहाँ पे लिखे थे। होमो सेम एटम्स कंबाइन होके बनते हैं, हेटेरो में डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारे पास थर्ड टर्म दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एटॉमिक मास में हमने देखा कि पहले एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड और रेफरेंस माना जाता था, और उसमें सबसे जो जरूरी था हमारे पास, जो पहला एलिमेंट था, पहले हाइड्रोजन को मान लिया था हमने। और फिर देखा जाता था कि हाइड्रोजन के मुकाबले एज कंपेयर टू हाइड्रोजन अदर एलिमेंट्स कितने हैवी हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उन्हें मास प्रोवाइड किया जाता था, असाइन किया जाता था, नॉट प्रोवाइड। अब क्या हुआ, नाउ रिसेंटली क्या हो गया, कार्बन को हमने एज ए रेफरेंस मान लिया, क्योंकि कार्बन ऐसा आइसोटोप है जो मैक्सिमम मैटर में पाया जाता है, सभी जगह कार्बन ही पाया जाता है। सो कार्बन को स्टैंडर्ड माना, लेकिन कौन से कार्बन को, कार्बन भी बहुत तरह के होता है, कार्बन के आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 14 होता है, कार्बन 12 होता है, उनमें से भी हमने स्टैंडर्ड किसको माना, कार्बन 12 को माना। कार्बन 12 को मानने के बाद जब हमने स्टैंडर्ड माना, तो यहां पे टर्म्स स्टार्ट हो गई हमारे पास, जो बहुत कॉम्प्लिकेट होती है बच्चों के लिए। इन्होंने कहा कि जब भी कार्बन 12 ऐसे लिखा होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि ये 12 एटॉमिक मास यूनिट का मास है। एटॉमिक मास यूनिट को एक अंडा मान लेते हैं, एक एग मान लेते हैं कि 12 अंडे मिलेंगे, 12 अंडे मिलके जितना मास बनाएंगे वो कार्बन 12 होगा। अभी 12 का इतना है, एक अंडे का मास कैसे निकालेंगे हम, एक अंडे का तो सिंपली 12 का टोटल, सो एक का कैसे निकालेंगे, 1/12 हो जाएगा। सो मैं वही डेफिनेशन यहां पर लिख रहा हूं, 1 एटॉमिक मास यूनिट, इट इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1/12। सो 1/12 एक एटम का मास निकाल लो, एक अंडे का मास निकाल लो, वो बोल रहा है, और उसको 1/12 के साथ मल्टीप्लाई कर दो। एक अंडे का जितना मास होगा उसका 1/12 करने के बाद जो मेरे पास आंसर आएगा, दैट इज कॉल्ड 1 AMU। एंड एक अंडे का मास, यहां पे अंडा छोड़ दीजिए, अभी केमिस्ट्री में आते हैं वापस। ये मजाक की वीडियोस बहुत सी मैंने सुनी है, बहुत सी देखी है, ऐसे केमिस्ट्री नहीं की जाती। हमें एग्जैक्टली साइंटिफिक टर्म्स पता होनी चाहिए। एटॉमिक मास यूनिट में हमने देखा कि मास एक एटम का होगा, और वो एटम किसका होगा, कार्बन का। अभी कार्बन का एक एटम का मास फाइंड कैसे करते हैं, ये बाद में करेंगे हम, कि 12 ग्राम टोटल कार्बन। 12 ग्राम क्यों लिखा यहां पे, 12 ग्राम क्यों लिखा, क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6 और मास नंबर कितना होता है 12। 12 मास नंबर है, किसी के भी मास नंबर के पीछे अगर ग्राम डाल दो, सिंपली अगर मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, किसी के भी एटॉमिक मास या मास नंबर के पीछे अगर ग्राम लिख दें हम, देन इट बिकम्स मोल। इसका मोल बोल देते हैं, एक मोल हो गया ये। और एक मोल में इतने ही एटम्स होते हैं, ये एवोगैड्रो हमें बता चुका है पहले ही, करेंगे हम बाद में। ये एक मोल जिसके हम 12 ग्राम बोलते हैं, उसमें इतने एटम्स हैं। मीन्स अगर उल्टा दें हम, इतने एटम्स मिलकर इतने ग्राम कार्बन बना रहे हैं। एक एटम मिलके कितना कार्बन बनाएगा, एक एटम कितना कार्बन होगा, 12 से इसको डिवाइड कर दें, मीन्स एक एटम का मास आ गया, मास आ गया एक एटम का। वही मास हम यहाँ पे लिख देते हैं। AMU में क्या बोला था हमने अभी, कि 1/12 करेंगे एक एटम के मास को। सो एक एटम का मास यहाँ से लिख लिया डायरेक्टली, 12 से 12 कैंसिल, 1/this मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, और बता दिया मैंने कैसे सॉल्व करना है। तो ये मेरे पास आ गया कुछ AMU की डेफिनेशन, 1.66 × 10⁻²4। सो इसे बेस मानकर हमने हाइड्रोजन का मास निकाला, तो वो हमारे पास कुछ 1.008 आ गया, उसे हमने 1 लिख दिया। सो आज भी एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 ही होता है, ठीक है। सो ऐसे ही हमारे पास हमने ऑक्सीजन का निकाला, बाकी सारे एलिमेंट्स का रेफरेंस इसी से लेकर निकाल लिया, और हमारे पास पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स का आज एटॉमिक मास अवेलेबल है, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं अभी जो इसके बाद जो हमारा फोर्थ टॉपिक था, दैट इज फोर्थ टॉपिक इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर मास। बच्चे गलती कर देते हैं यहां पर भी, मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, देखिए
total sum of, it is the total sum of masses of all elements present in a molecule. एक मॉलिक्यूल में कितने एलिमेंट्स हैं, उनके मासेस का टोटल सम कर दो, मॉलिक्यूलर मास आ गया हमारे पास. वेरी इजी. डेफिनेशन को कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको पता है, आपको एग्जाम में तो सीधा फाइंड करना आएगा. एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास है C6H12O6, दैट इज कॉल्ड ग्लूकोज. अभी उन्होंने बोला ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कीजिए. कैसे करेंगे? ग्लूकोज में सबसे पहले देखेंगे हम कार्बन कितने हैं. कार्बन है 6. जितना नंबर होगा, ठीक है, आप हमारे पास अगर मैं सिंपल फॉर्मूला लिखूं तो कैसे होगा, किसी भी एलिमेंट का नंबर ऑफ एलिमेंट मल्टीप्लाई करिए उसको मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट. ठीक है, नंबर ऑफ या फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ सेकेंड एलिमेंट प्लस मल्टीप्लाई मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट. ये एक छोटा सा फॉर्मूला आप लिख सकते हो अगर किसी को कंफ्यूजन है मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में. कैसे किया मैंने? नंबर ऑफ वन एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 6, कार्बन है, मल्टीप्लाई कार्बन, उसी एलिमेंट का मास, कार्बन का मास कितना होता है? 12, ये आपको याद करना है, प्लस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, अगला एलिमेंट नंबर कितना है उसका? 12, मल्टीप्लाई हाइड्रोजन का मास होता है 1, प्लस अगला एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट इज 6, ऑक्सीजन नंबर 6 है, मल्टीप्लाई ऑक्सीजन का मास होता है 16, सो दैट इज इक्वल टू 72 प्लस 12 प्लस 96. प्लस कीजिए इसको, दैट इज इक्वल टू 180. It means 180 is the molecular mass of glucose. 180 is the molecular mass of glucose. We can write it as 180 U. What is U? अभी हमने किया था. 180 is equal to 180 atomic mass unit. ये तो लिखा हमने कि इसको मैंने असाइन कैसे किया. 180 मैंने इसको असाइन कैसे किया? कार्बन को स्टैंडर्ड माना, कार्बन का ऑलरेडी सारा कुछ फाइंड कर चुके हैं हम, एंड उससे हमने लिखा था AMU, दैट वाज AMU. सो अगर इसका मॉलिक्यूलर मास 180 है तो इसके पीछे मैं क्या लिखूंगा? AMU, और सिंपली की लिख सकता हूं U. क्या लिख सकता हूं? U. और अगर मैं इसको ग्राम में शिफ्ट करना चाहता हूं, अगर मैं किसी भी मॉलिक्यूलर मास के पीछे सिंपली G लिख दूं, ग्राम लिख दूं, देन इट बिकम्स ग्राम molecular mass, or it is also called gram molecule. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, हमें सभी के मॉलिक्यूलर मास के पीछे ग्राम डालना पड़ता है. ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करना है मेरे बाद में. एग्जांपल के तौर पर मैं एलिमेंट भी ले लेता हूं. कोई एटॉमिक मास है मेरे पास, सोडियम है मेरे पास, सोडियम हैज एटॉमिक नंबर 11, मास नंबर इज 23. अभी मास नंबर इज 23, वी नो इट इज एटॉमिक मास, और मास नंबर 23 इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम. बट आई कैन राइट इट इन टू फॉर्म्स, 23U, दैट इज AMU, और 23 ग्राम, दैट इज कॉल्ड नाउ दैट इज कॉल्ड ग्राम atomic mass. Easy? This is called gram atomic mass. Similarly, I have a molecular mass. I have a molecular mass of glucose as 180, and I can write it as two types. In two types. One is 180U and second is 180 gram. And 180 gram is called gram molecular mass. So this is all about your atom, molecule, atomic mass, molecular mass and AMU in single lecture.
अगर आपने ये सीख लिया यहां तक, मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि आप इसको रिवाइज कीजिए, 1 2 3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको एग्जैक्टली ये सारा पता चल जाएगा। बार बार लेक्चर देखिए, क्योंकि इसमें से सबसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो बनेगा आपका AMU पर, ठीक है। ये भी सीरीज में लेके आऊंगा जिसमें हम सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व होंगे वहां पर, और आपकी प्रैक्टिस जो है पूरी तरह कॉम्पिटिटिव लेवल की होगी। अभी फिलहाल हम सिर्फ सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, अपना पहले एक चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, AMU आ गया यहाँ पर। देन उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा अभी इसके बाद, मोल कंसेप्ट। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। अगर ये सीख लिया तो हमने +2 के काफी चैप्टर सीख लिए, अगर ये सीख लिया हमने, ठीक है। सो इससे पहले हमें ये करना है, अभी आपका होमवर्क क्या है, जो भी बच्चे मेरा ये लेक्चर देख रहे हैं या जो भी देखेंगे बाद में, तो सिर्फ आप एक काम कीजिएगा। मेरे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, फ्यू कंपाउंड्स, जिसमें से फर्स्ट है शुगर, सेकंड है सल्फ्यूरिक एसिड, थर्ड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फोर्थ इज अमोनिया, फिफ्थ इज मीथेन, सिक्स्थ इज वाटर, 7 is glucose we have done, 7 is carboxylic acid, not carboxylic acid, second is vinegar. This is the homework. You have to write down the molecular formula as well as molecular mass in grams. So this is the homework. You have to write the molecular formula of these compounds as well as the molecular mass. You have to find it out. This is the homework. अगर ये आपने कर लिया तो मोल कंसेप्ट बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। होप सभी को ये लेक्चर समझ आया होगा।